Hello, dear students. Hope you all are well. Students, as we all have completed till chapter 6, so today we are going to start with a new chapter, that is chapter 7, Logo Commands. See, students, I have already taught you all about different programming languages like C, Python, Oracle, and many more. Logo commands is also one of the type of programming languages. Means it is a language of computer. It is a language of computer. The command which is used in Logo is known as primitive. What is it is known as? It is known as primitive, and primitive together called program. Logo is used for drawing simple basic shapes like triangle, rectangle, square, and for performing arithmetic calculation, means for performing plus, minus, multiplication, division. Got it, class? So now first is how to start Logo. First step is to switch on the computer. Then the second step is we can search in all programs, or we can click on all programs, and then we have to click on Microsoft Window logo, and there Microsoft Window logo, this dialog box will appear. Got it? And this is graphic screen, and this is Commander window. Got it? Commander window consists of different control buttons. Here different control buttons are there: halt, pause, step, execute, status. Got it? Now let's see what is the use of this all these different control buttons. First one is halt. Halt is to stop Logo from processing further. If we want to stop the Logo command working, we have to click on the control button, that is halt. Second one is pause. Pause is to stop the program execution temporarily. If we want to stop the programming for few seconds or few minutes, then there is an option, that is pause. Third one is step. This button remove the error. Suppose we are writing, we are not we can say perfect in this programming. We are writing some command and we are thinking it is not right. So there is option in Logo that we can check whether we are doing right or wrong. That is step. Fourth one is execute. Execute button is also just like enter key. Suppose we have written some command and we want to execute it. There is two options. First one is execute button and second one is enter key. Now trace. Trace, what is the use of trace? Trace is used for finding error. For tracing the error, गलतियाँ निकालने के लिए trace कंट्रोल बटन का यूज़ होता है. फिर बारी आती है स्टेटस बटन की. स्टेटस बटन इट डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ द करंट सेटिंग. व्हाट इज द करंट सेटिंग इन द लोगो we can get to know through status button. Then reset. Reset, this button is used to clear the logo main screen. अगर लोगो की स्क्रीन पे हमने बहुत सारा कुछ राइटअप कर दिया है, कुछ बना दिया है, अगर उसको हमको क्लियर करना है, उसको वापस उसी पोजीशन में, वापस उसी फॉर्म में, नए न्यू पेज के फॉर्म में ले आना है, तो हमें रीसेट कंट्रोल बटन का यूज़ करना होगा. गॉट इट क्लास? क्लास इन क्लास थर्ड ऑल्सो आपने लोगो के बारे में पढ़ा होगा. ये सारे कमांड्स हैं उसके फुल फॉर्म्स के साथ और उनके वर्क्स के साथ. जैसे फॉरवर्ड, FD. फॉरवर्ड इज़ फॉर मूविंग द टर्टल फॉरवर्ड by the given number of step. Backward, for moving the turtle back. For left, moving it left. For moving it right. For bringing it to the home position.
for hiding the turtle, for showing the turtle, for clearing the screen, for clearing the text, for pen up, for pen down, and at last for exit from the logo, that is by command. These all commands आपने क्लास 3rd में पढ़ रखा है. अब बारी आती है कुछ प्रिंट कमांड के बारे में पढ़ने की. कुछ प्रिंट करने के लिए हमें कैसे कमांड को लिखना होगा. कुछ प्रिंट करने के लिए या तो आप प्रिंट लिखिए या PR लिखिए. कमांड में आपको क्या लिखना होगा कमांडर विंडो पे, या तो प्रिंट या फिर PR. सपोज यू वांट टू प्रिंट सम नंबर्स, आपको 1 2 3 4 प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखोगे, या तो लिखोगे PR स्पेस दोगे 1 2 3 4, या फिर प्रिंट 1 2 3 4, प्रिंट के बीच में भी स्पेस देके फिर 1 2 3 4 लिखोगे. गॉट इट, फॉर प्रिंटिंग द नंबर. वैसे अगर और फिर एंटर की दबाओगे या फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पर्टिकुलर चीज़ जो आप प्रिंट कराना चाहते हो वो प्रिंट हो जाएगा. फिर प्रिंटिंग द लेटर. इफ़ यू वांट टू प्रिंट सम लेटर, आपको कुछ लेटर या फिर कुछ वर्ड प्रिंट करना है, लाइक काइट, तो प्रिंट काइट. और उसके साथ जैसे आपने नंबर्स में स्पेस लगाया है, सपोज वी वांट टू प्रिंट सम लेटर या फिर वर्ड, तो आपके उसके जैसे आपने जब नंबर प्रिंट कराया था तो आपने स्पेस दिया था, उसके बीच में आपने कुछ नहीं लिखा था. वैसे ही अगर आपको कोई लेटर या फिर वर्ड करना है तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होगा. इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करोगे, फिर उसके बाद जो भी आपको प्रिंट करना है वो लिखोगे. गॉट इट. सेम फॉर द सेंटेंस. सेंटेंस के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करोगे. ठीक है, आपने PR लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर उसमें अपना जो भी आपको सेंटेंस लिखना है, दैट आई लव माई स्कूल, फिर उस टाइप करने के बाद एग्जीक्यूट कर दोगे. या फिर यहाँ पे अंडरस्कोर का भी यूज़ हुआ है. अगर आप इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले एनी मैसेज यूजिंग अंडरस्कोर मतलब ये वाला साइन बीच बीच में डालना चाहते हो, तो आपको उसको इंक्लोज करना होगा डबल इन्वर्टेड कोट्स से, डबल इन्वर्टेड कॉमास से, अगर आप अंडरस्कोर चाहते हो तो. नाउ प्रिंट फर्स्ट. ये प्रिमिटिव यूज़ होता है फॉर डिस्प्लेइंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. जैसे ये सेंटेंस आपने लिखा ब्रैकेट में, गॉड इज़ ग्रेट, इसका फर्स्ट वर्ड प्रिंट होगा. अगर आपने प्रिंट फर्स्ट किया कमांड यूज़ किया है तो इसका फर्स्ट वर्ड दैट इज़ गॉड. वैसे ही ये पर्टिकुलर ये सेंटेंस है, इसका वर्ड है, इसमें आपको फर्स्ट प्रिंट होगा R, अगर आप प्रिंट फर्स्ट का यूज़ करते हैं. देन इट कम्स कैलकुलेशन इन लोगोस, क्योंकि हमारे लोगो में हम डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं, कोई वर्ड सेंटेंस इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. तो डिफरेंट अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविज़न. ओके, नाउ रूल्स टू फॉलो. देयर आर फ्यू रूल्स जिनको फॉलो करके हम इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट रूल इज आफ्टर टाइपिंग प्रिंट कमांड लीव वन स्पेस देन टाइप द नंबर विद डिज़ायर्ड ऑपरेटर. पहले भी हम ये काम करते थे कि हमने जो कमांड लिखा, प्रिंट कमांड लिखा है, उसके बाद हम स्पेस लगाते थे. वैसे सेम प्रोसेस होगा. इसमें हम कोई भी कमांड यूज़ करने के बाद स्पेस लगाएंगे, उसके बाद जो भी ऑपरेटर के साथ नंबर्स का यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर टेक 2 इनपुट्स. सिंपल थिंग है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी नंबर है, उसके साथ अगर किसी नंबर को ऐड करेंगे, 2 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नंबर को हम अकेला तो ऐड कर नहीं सकते हैं, उसके साथ कोई दूसरा नंबर चाहिए ऐड करने के लिए. मीन्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. यहाँ पे एक आपको टेबल के थ्रू समझाया है कि कैसे आप लिखोगे. जैसे प्रिंट
फिर स्पेस 6 + 9 दैट इज आउटपुट विल बी 15. गॉट इट क्लास. अब सारे फंक्शंस दिए हैं कि कैसे आप ऐड करोगे, सम्स करोगे, कैसे आप सब्ट्रैक्शन. पहला है सम, तो प्रिंट सम. सम मतलब एडिशन विदाउट यूजिंग. आप इसमें आपको ऑपरेटर यूज़ करने की, जैसे आपने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया ना, प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे आप प्लस की साइन नहीं भी लगाओगे तो आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा. लाइक आपने बता दिया ना कि आपको क्या करना है. प्रिंट, फिर स्पेस देंगे, फिर सम, फिर जो भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी आपको ऐड करना है वो आप लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. दूसरा वे है कि आप उसको ब्रैकेट में भी करके ब्रैकेट में लिख सकते हो. प्रिंट लिखोगे, प्रिंट लिखा, पी प्रिंट लिखा, उसके बाद सम लिखा, उसके बाद जो भी डिज़ायर्ड नंबर्स हैं वो लिख दिए. ठीक है, उससे भी हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा. इन द सेम वे डिफरेंस अगर हमें माइनस करना है तो फिर इन द सेम वे हम करेंगे. प्रिंट डिफरेंस, जो भी 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है. प्रोडक्ट करेंगे इन द सेम वे, प्रिंट प्रोडक्ट, जो भी 2 नंबर 3 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है. गॉट इट. सेम वे हम अगर डिवीज़न करना है तो हम डिवीज़न में क्या है, अगर आपको क्वोशंट्स चाहिए, क्वोशंट्स निकालना है तो आप प्रिंट क्वोशंट लिखोगे कि हाँ मुझे क्वोशंट्स चाहिए. अगर रिमाइंडर निकलना है तो प्रिंट रिमाइंडर. गॉट इट. आई होप कि आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करना आ गया. अब बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर की. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर होता है इक्वल टू कमांड, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. गॉट इट. अब इसमें मान लो आपको किसी चीज़ का मतलब जानना है कि वो लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू उसको इवोल्यूशन करना है, मतलब आपको उसको निकालना है कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, तो आप इन सब कमांड्स का यूज़ करोगे. उसके लिए क्या है, या तो उसके लिए देखिए प्रिंट, फिर गैप लगाया है, स्पेस देंगे एक, फिर उसके बाद जो भी दो नंबर्स हैं उनको इनपुट करेंगे. दैट इज़ 12 इज़ इक्वल टू 12, तो आंसर हमारा क्या आएगा? ट्रू. वैसे ही अगर आपने प्रिंट कराया कि प्रिंट 12 इज़ इक्वल टू 14, तो ये फॉल्स आएगा आंसर. ठीक है. वैसे तीसरा क्या है, प्रिंट 15 इज़ ग्रेटर देन 12, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा. वैसे ही 15 इज़ ग्रेटर देन 12 इज़ ग्रेटर देन 15, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा. गॉट इट क्लास. इन द सेम वे लेस देन. सो क्लास आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिकल ऑपरेटर समझ में आ गया, एंड हाउ टू प्रिंट सेंटेंस और लेटर और वर्ड और एनी नंबर. सो क्लास आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन. सो क्लास, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे अहेड.